بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. کا سورج سب سے بڑا ہے؟ مطلب یہ کوشچن بنتا ہے نا کہ بھئی سورج اتنا بڑا ہے جس کی وڈتھ کے کوئی اندازے نہیں لگا پا رہا، جس کی ہائٹ کا، جس کے وزن کا اور جس کی ساری چیزوں کا کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا، ابھی اتنا بڑا، اتنے گنا جس میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے اتنا، تو کیا پھر سورج سب سے بڑا ہے؟ نہیں، جواب یہ ہے کہ نہیں، سورج سب سے بڑا نہیں ہے۔ ایک سیارہ ایسا ہے جو ہمارے سورج سے، ذرا ہضم کیجئے گا، ایک سیارہ ایسا ہے جو ہمارے سورج سے 700 گنا زیادہ بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، سورج کیا بڑا ہے؟ ایک سیارہ سورج سے 700 گنا زیادہ بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں کہ کیا وہ سیارہ سب سے بڑا ہے؟ نہیں، اس سے بھی بڑا ایک اور سیارہ ہے سائز کے اعتبار سے، جو ایک اور سیارہ ہے۔ اچھا، یہ تو ہم نے دیکھ لیا نا کہ اس سے بھی بڑا ایک اور سیارہ ہے جو کہ کیا ہے، پچھلے والے سیارے سے 2000 گنا زیادہ بڑا ہے۔ اب دیکھیں، سورج سب سے بڑا ہے؟ نہیں، سورج سے بڑا بھی ایک اور سیارہ ہے۔ وہ سیارہ کتنا بڑا ہے سورج سے؟ 700 گنا زیادہ بڑا ہے۔ اور اس سیارے سے بھی ایک اور سیارہ بڑا ہے، اور وہ کتنا بڑا ہے؟ 2000 گنا زیادہ بڑا ہے۔ سورج کیا بڑا ہے؟ اس سے بڑا بھی ایک سیارہ ہے، اور اس سیارے سے بھی بڑا ایک سیارہ ہے جو 2000 گنا زیادہ بڑا ہے۔ اچھا، اب جب مطلب ڈسکس کیا جائے نا سیاروں وغیرہ کو، جس کی یہ سین ہوتا ہے کہ جو سیارے ہیں نا، پہلے تو پلانٹس سارے ہوتے ہیں، پلانٹس مل کے سیارہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سیارے جو ہوتے ہیں ستارے بناتے ہیں، اور ستارے جو ہوتے ہیں وہ مل کے گلیکسیز بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور گلیکسیز جو ہوتی ہیں وہ ملتی ہیں جب تو کلسٹرز بنتے ہیں، اور کلسٹرز جب ملتے ہیں تو وہ مل کے سپر کلسٹرز بناتے ہیں، اور سپر کلسٹرز جو ہیں وہ جب ہاں سپر کلسٹر، اور ایک سپر کلسٹر نہیں ہے، پھر کروڑوں سپر کلسٹرز ہیں۔ یہ ہے اوور ویو ایک چیز کا کہ پہلے کیا ہوں گے، ستارے، ستارے مل کے گلیکسیز، گلیکسیز کلسٹرز، کلسٹرز سپر کلسٹرز، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے بات کہاں تک کی؟ ابھی ستاروں تک کی ہے کہ ایک سورج سے بڑا بھی ایک ستارہ ہے، اور اس ستارے سے بڑا بھی ایک ستارہ ہے۔ اچھا، تو کیا یہ ستارہ سب سے بڑا ہے؟ نہیں، یہ ستارہ سب سے بڑا نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں ہم لوگ گلیکسیز کی طرف، ٹھیک، کہ ستاروں کو تو دیکھ لیا، اب جو ہم ہر ستارے کو دیکھیں گے تو ان کے سائزز انکریز کرتے جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں گلیکسی کو، گلیکسی ہوتی کیا ہے، اس کو سمجھتے ہیں پہلے تھوڑا سا۔ گلیکسی نا ایک ایسا نظام ہے جس کے اندر کئی سولر سسٹمز آ جاتے ہیں، کئی ستارے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کئی ہمارے جو پلانٹس ہیں اس کے کئی جو پلانٹس ہیں، کئی سولر سسٹم جو ہے نا وہ ہمارے ایک گلیکسی کے اندر آ جاتے ہیں، صحیح ہے۔ اب یہ دیکھیں، ہم لوگ جس گلیکسی کے اندر رہ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہم لوگ جس گلیکسی کے اندر رہ رہے ہیں، مطلب ہمارا جو سولر سسٹم ہے وہ جس گلیکسی کے اندر ہے، اس گلیکسی کا نام ہے ملکی وے گلیکسی، ٹھیک ہے۔ یہ سائنس نے سب کچھ ڈسکور کیا ہے، کوئی اور نہیں بتا رہا ہمیں۔ یہ سائنس جو آج ہر چیز کو ڈینائی کرتی ہے نا، اللہ کے قرآن کو، اللہ کی چیزوں کو، یہ وہی کہہ رہی ہے کہ ہم جس گلیکسی کے اندر رہ رہے ہیں وہ گلیکسی کا اس کا جو نام ہے وہ ہے ملکی وے گلیکسی۔ اب دیکھیں، یہ ایک گلیکسی، اس کی ذرا نا جس میں ہم رہ رہے ہیں ہم اسی کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ایک گلیکسی کتنی بڑی ہے۔ اس سائنس یہ کہتی ہے کہ اس ملکی وے گلیکسی جس کے اندر میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس میں ہمارے سورج جیسے، جس کا سائز ہی اتنا بڑا تھا، ہمارے سورج جیسے 300 ارب، 300 ارب سے بھی زائد سورج موجود ہیں۔ ذرا تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، اس ایک گلیکسی میں، ملکی وے گلیکسی کے اندر 300 ارب سے بھی زائد سورج ہیں، 300 ارب سے بھی۔ کتنی بڑی ہوگی پھر یہ؟ جب ایک سورج اتنا بڑا تھا تو یہ کتنی بڑی ہوگی؟ جب ایک زمین اتنی بڑی ہے، وہی ہمیں ہضم نہیں ہوتی کہ اتنی بڑی ہے، تو یہ گلیکسی کتنی بڑی ہوگی؟ اس کو ذرا تھوڑا سا پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی ہے۔ اچھا، سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے اس کی وسعت کا اندازہ لگانا ہو نا اس گلیکسی کی، تو یہ اتنی بڑی ہے کہ اگر
हम एक ऐसी सवारी में सवार हैं जो 1 सेकंड में ना, ऐसी सवारी है जो इतनी तेज चलती है कि 1 सेकंड में ना वो सवारी 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है। कितने सेकंड में? एक में। फासला कितना है? 3 लाख किलोमीटर। ऐसी सवारी में हम लोग सवार हैं जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है। यानी 1 सेकंड में कोई जमीन के साथ चक्कर लगा ले, यानी इतनी तेज रफ्तारी में हम सवार हों कि 1 सेकंड में जमीन के साथ चक्कर लग जाए। ठीक है, कोई इतनी तेज सवारी में हम सवार हों तो इस सवारी को भी हमारी गैलेक्सी को पार करते हुए 1 लाख साल लग जाएंगे। इसको फिर पढ़ती हूँ मैं जरा, कि अगर आप एक ऐसी सवारी में सवार हैं जिसको 1 सेकंड में, जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है, ठीक है, और 1 सेकंड, यानी इसको अगर आप और वर्ड्स में देखें तो 1 सेकंड में कोई ऐसी सवारी है जो 1 सेकंड में जमीन के 7 चक्कर लगा लेती है। एक चक्कर नहीं जमीन का, 7 चक्कर जमीन के लगा लेती है, इतनी तेज रफ्तार है। और अगर आप उस सवारी में सवार हो जो जमीन के 7 चक्कर लगा लेती है 1 सेकंड के अंदर, उस सवारी के अंदर भी अगर आप सवार हो तो गैलेक्सी का एक एक पूरा चक्कर लगाने में आपको 1 लाख साल लग जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या जिस गैलेक्सी के अंदर हम लोग रह रहे हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, क्या ये सबसे बड़ी गैलेक्सी है? इससे बड़ी और कोई नहीं है? नहीं तो, इससे बड़ी भी एक और गैलेक्सी है। इसका नाम है एंड्रोमीडा गैलेक्सी। ये गैलेक्सी जो है, ये हमारे बिल्कुल साथ वाली गैलेक्सी समझ लें। ठीक है, और ये हमारी गैलेक्सी से दुगनी है, 2 गुना बड़ी है। ठीक है, यानी 2 लाख नूरी साल बड़ी है ये हमारी गैलेक्सी से। अब देखें, एक नूरी साल है और एक इंसानी साल है, मतलब एक इंसान की नूरी साल का मतलब ये है लाइट की स्पीड। अब साउंड स्पीड जो है वो लाइट स्पीड जो है वो साउंड स्पीड से भी ज्यादा है। ऐसे ही है ना, आप लोगों को पता होगा, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से भी ज्यादा होती है। तो साइंस ये कह रही है कि जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है वो 2 लाख नूरी साल लाइट की स्पीड की बात हो रही है। 2 लाख नूरी साल जो है ना वो बड़ी है मिल्की वे गैलेक्सी से। अल्लाह अकबर। तो फिर क्या ये गैलेक्सी क्या ये गैलेक्सी जो कि सितारों से मिलके बनी थी, जो सोलर सिस्टम से मिलके बनी थी, क्या ये गैलेक्सी सबसे बड़ी गैलेक्सी है? नहीं तो, इससे बड़ी भी एक और गैलेक्सी है, और ये गैलेक्सी पिछली एंड्रोमेडा गैलेक्सी से 60 लाख नूरी साल बड़ी है। ये आप लोग काउंट कर पा रहे हैं? ये आप लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं कुछ? इंसान का दिमाग घूम जाता है। ये चले, अगर ये कुरान में बात होती तो फिर भी होता कि चले वो नहीं मानते, वो खुद कह रहे हैं ये चीज। मतलब नॉन मुस्लिम जो साइंसदान है, वो ना, कुछ मुस्लिम्स भी होते हैं ना, लेकिन जो जो साइंसदान है, जो साइंस है, वो ये खुद इन्वेंट कर रही है। वो ये खुद कह रही है कि एक और भी गैलेक्सी है जो पिछले वाली गैलेक्सी से बड़ी है। और कितनी बड़ी है? 60 लाख बड़ी है। हमारी गैलेक्सी इतनी बड़ी थी कि एक चक्कर लगाने में 1 लाख साल लग रहे थे। तो ये जो गैलेक्सी है जो 60 लाख बड़ी है, इसको कितने साल लगते हैं भला? तो फिर क्या ये गैलेक्सी सबसे बड़ी गैलेक्सी? नहीं जी, ये अभी गैलेक्सी है। ये अभी ये अभी क्लस्टर्स नहीं बने, ये अभी सुपर क्लस्टर्स नहीं बने। ठीक है, तो जिस क्लस्टर में अब ये हमने बात कर ली गैलेक्सीज की। अब सिर्फ हमारी गैलेक्सी को ले लें, मिल्की वे गैलेक्सी। ये किसी क्लस्टर में है ये। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं पड़ी हुई, ये किसी क्लस्टर के अंदर है। और जिस क्लस्टर में हमारी गैलेक्सी है, और भी गैलेक्सीज हैं उसके अंदर, क्लस्टर में हमारी गैलेक्सी भी है और भी गैलेक्सीज हैं, और जिसमें हमारी गैलेक्सी है उस क्लस्टर को कहते हैं विर्गो क्लस्टर। ठीक है, अच्छा, जिस क्लस्टर में हमारी गैलेक्सी है, विर्गो क्लस्टर उसको कह रहे हैं। और इस क्लस्टर में सिर्फ हमारी गैलेक्सी नहीं है, 2000 और गैलेक्सीज भी हैं। आप एक गैलेक्सी का साइज इमेजिन नहीं कर पा रहे, तो एक गैलेक्सी का साइज ही अनइमेजिन चीज है। तो इतनी 2000 गैलेक्सीज, उनका साइज क्या होगा? तो फिर एक क्लस्टर का साइज क्या होगा? ठीक है, और फिर ये जो डिफरेंट क्लस्टर्स होते हैं वो मिलते हैं और मिलके सुपर क्लस्टर्स बना देते हैं। और जिस सुपर क्लस्टर के अंदर हम लोग रह रहे हैं उसका नाम है लोकल सुपर क्लस्टर। ठीक है,
और इस एक सुपर क्लस्टर के अंदर 500 से करीब क्लस्टर्स हैं। एक सुपर क्लस्टर, सिर्फ एक की बात हुई है, ठीक है। एक क्लस्टर के अंदर 2000 गैलेक्सीज हैं, हमारे वाले क्लस्टर के अंदर 2000 गैलेक्सीज हैं, और जिस सुपर क्लस्टर के अंदर हम लोग रह रहे हैं उसमें 500 से करीब क्लस्टर्स हैं। अल्लाहु अकबर, ठीक है। और फिर कायनात के अंदर इस तरह के कई और सुपर क्लस्टर्स हैं, और जिसका डिजिट साइंस ने ये बताया है कि कमोपेश 1 करोड़ सुपर क्लस्टर्स हैं। अभी अभी कंफर्म नहीं है, कमोपेश, डिजिट नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन इन्होंने बोला कमोपेश इतने हैं, 1 करोड़ सुपर क्लस्टर्स हैं। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह ताला ने ये सारी कायनात एक नुक्ते में समेटी हुई है, ठीक है। एक ये सारी कायनात एक नुक्ते की मानद लगती है। आप जमीन का जब नक्शा देखते हैं, हम लोग जब इस कायनात का नक्शा देखते हैं, तो एक नुक्ता ही लगता है, ठीक है। तो हर चीज, ये देखें अब, ये जो सुपर क्लस्टर्स हैं, क्या ये बड़े हैं? ये सबसे बड़े हैं? क्या ये सुपर क्लस्टर सबसे बड़े हैं? नहीं, ये सुपर क्लस्टर सबसे बड़े नहीं है। इनसे बड़ा भी कोई है, वो है हमारा रब, ठीक है। ना ये सितारे बड़े हैं, ना ये गैलेक्सीज बड़ी हैं, ना ये क्लस्टर्स बड़े हैं, ना ये सुपर क्लस्टर्स बड़े हैं, और ये सारा कुछ एक नुक्ते की मानद है अल्लाह के सामने। अल्लाह इन सब से बड़ा है। तो फिर अब मुझे आप लोग बताएं, क्या मेरी और आपकी परेशानी अल्लाह से बड़ी है? जरा सोचें, हमारे ऊपर आज जो हालात हैं, क्या वो अल्लाह से बड़े हैं? वो अल्लाह से बड़े हैं? नहीं बड़े ना। वो तो करीब 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 भी नहीं है, बिल्कुल करीब भी नहीं है, मतलब उसको टच भी नहीं कर रहे। एक जर्रे से भी कम, मतलब इनविजिबल, जो नजर ना आने वाली चीज है ना, वो है हमारे मामलात अल्लाह के सामने। अल्लाह इतना बड़ा है। अब आपको पता चला कि ये तो फिर भी इल्म डिजिट, ये तो फिर भी इल्म जो है ये लिमिटेड है, ठीक है। अल्लाह तो हम, ये तो हमें बस पता चला है, जो हमें नहीं पता अल्लाह उससे भी बड़ा है, ठीक है। ये कायनात की हर चीज फैलती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है, मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। हमने देखा है कि स्पीड से बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ये हर चीज फिर भी उतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा मेरा और आपका रब है। तो अब क्या दिल नहीं करेगा उसका हुक्म मानने को? तो अब क्या दिल नहीं करेगा कि हम उसकी अताअत करें? क्या दिल नहीं करेगा हम डटे रहेंगे अल्लाह की नाफरमानी में? हमारा अब दिल नहीं करेगा कि हम अल्लाह ताला के अहकामात को माने, पूरे दिल से माने, उसके सामने सजदा करें, पूरी नीयत से करें, बगैर इस नीयत से कि भाई, बगैर ये सोचे समझे कि अल्लाह मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। अब तो हम अगर अल्लाह की कुदरत को जहन में लेके सजदे में गिरे, तो मुझे ये लगता है कि एक अक्लमंद, शऊर वाला और अल्लाह से मोहब्बत करने वाला बंदा तो शर्म के मारे अपना सर ही ना उठा सके, अल्लाह की कुदरत के आगे अपने आप को सरे तस्लीम हम कर दे कि भाई मैं इंसान नॉर्मल सा, जो अल्लाह की कुदरत के आगे डटा खड़ा हूं कि मैंने ये काम नहीं करना, मैंने अल्लाह का ये हुक्म नहीं मानना, मेरी है क्या औकात, मैं चीज क्या हूँ, ठीक है। अब फील करें अपनी वुकत, हम लोग अब फील करें अपनी वुकत, हम लोग अब फील करें अपनी अहमियत, कि हम लोग क्या चीजें हैं और हम लोग क्या बने हुए हैं, ठीक है कोई अहमियत फिर हमारी अब जरा महसूस करें, हाँ ये इतना कुछ है कायनात के अंदर, हमारी अंदर क्या अहमियत है? हम नजर आते होंगे? नहीं ना आते होंगे, इतने छोटे हम लोग हैं। तो हम बने ऐसे हैं कि पता नहीं क्या है हम लोग, इतने मुतकब्बिर, इतने अल्लाह ताला की आयतों को सुन के जुटलाने वाले। अब देखें, इतनी बड़ी कायनात का जो मालिक है, वो आपको ये तौफीक दे कि आप कुरान पढ़ें, वो आपको ये तौफीक दे कि आप अल्लाह के कलाम को पढ़ें, तो क्या आपको वो तौफीक दे रहा है, तो इसमें आपका कोई कमाल है कोई कमाल? मतलब इतनी बड़ी कायनात में उसने मुझे और आपको जहन में रखा हुआ है, उसने मुझे और आपको अपनी सोच में रखा हुआ है कि ये बंदे भी हैं दुनिया में। वो अगर सोच में ना रखे तो मैं समझती हूँ ये काफी है, ये भी ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए और बड़े मामला हैं जिसको उसने जहन में रखना है ना। अगर उसने मुझे और आपको ये तौफीक दी है कि हम लोग अभी कुरान पढ़ें, कुरान सुने, कुरान की तालीम दें, इस पे अमल करें, अल्लाह के सामने रोने वाली आंख अगर उसने हमें दी है, तो ये उसका एहसान है। वरना जितना वो बड़ा है, वो हमें देखे भी ना, वो हमारी तरफ नजर भी ना करे, तो ये भी हमारे लिए कम होगा। और जितने हम गुनाहगार हैं, मुझे लगता है वो हमें देखे भी ना, तो ये हमारे लिए कम है, ठीक है। वो हमारे ऊपर एहसानात तो करना दूर की बात है, जितने हम गुनाहगार हैं ना,
जितने हम जो है वो अल्लाह के साथ बेवफाई करने वाले हैं, सच में अगर वो हमें देखे भी ना, अगर वो हमारी तरफ आंख भी उठाए ना, अगर वो हमें रिस्क भी ना दे, अगर वो हम पीने को पानी भी ना दे, तो ये भी हमारे लिए कम होगा, ये भी हमारे लिए सजा कम होगी। ठीक है, तो अगर वो दे रहा है ना हमें, तो अल्लाह अकबर। ठीक है, उसकी कुदरत है फिर। तो अब जब भी आपने अल्लाह अकबर कहना है, तो जहन में रखना है, जब दुआ मांगनी है तो जहन में रखना है कि मैं किस से मांग रही हूँ। फिर शक को शुबा नहीं करना। अल्लाह ताला क्यों कहते हैं कि मायूसी कुफर है? मायूसी जो है ना, वो एक मोमिन के लिए तो कुफर है, क्योंकि मोमिन को पता है उसका रब कितना बड़ा है, मोमिन को पता है कि अल्लाह कितना बड़ा है। अल्लाह अकबर। ठीक है, जब मोमिन को ये पता है अल्लाह कितना बड़ा है, तो फिर मायूसी तो आ सकती नहीं, मायूसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर देख लें, आज अगर आपको ये चीज सुनाई जा रही है सुनाई जा रही है, तो फिर आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है। ठीक है, आइंदा से। ओके, इसको बस टूवर्ड एंड फटाफट से करते हैं, कि यूनिवर्स का जो है वो एंड कैसे होगा, इससे रिलेटेड साइंस और अल्लाह ताला के आयात जो है वो क्या कहती हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइंस, साइंस ने एक थ्योरी दी है, जैसे बिग बैंग थ्योरी उसने दिया है, तो वैसे ही बिग क्रंच थ्योरी साइंस ने दी हुई है। बिग क्रंच थ्योरी ये कहती है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बिग बैंग के बिल्कुल रिवर्स है ये। साइंस ये कहती है कि कायनात एक इंतहा तक फैलने के बाद, साइंस ये कहती है कायनात फैलती चली जाएगी, फैलती चली जाएगी, एक इंतहा तक फैलेगी और आहिस्ता आहिस्ता लिपटना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और फिर वापस एक नुक्ते में बंद हो जाएगी। ये साइंस कह रही है कि फैलती जाएगी, फैलती जाएगी, फैलती जाएगी, एकदम से अपना रिवर्स पीछे को होगी और आहिस्ता आहिस्ता वापस एक नुक्ते में बंद होना शुरू हो जाएगी। मतलब गैलेक्सी है, ये जो क्लस्टर्स हैं, सुपर क्लस्टर्स हैं, ये दोबारा जब फैल रहे हैं जैसे जैसे, वैसे ही सारे के सारे दोबारा एक नुक्ते में बंद हो जाएंगे। अब ये साइंस ने बताया है 100 साल तकरीबन पहले। तो अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 104 में अल्लाह ताला कहते हैं, इस दिन, अल्लाह अकबर, उस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट देंगे जैसे खुले हुए कागजात को लपेट दिया जाता है, और फिर जैसे हमने इसकी तहलीक की इब्तिदा की थी, इसी तरह हम इसको वापस कर देंगे। ठीक है, तो किसने बता दिया है ये हमें 1400 साल पहले? किसने हर किस्म की तहलीकात और हर किस्म की इजादात से पहले हमें बता दिया है कि एक दिन ऐसा आएगा जब अल्लाह ताला आसमान को लपेट देंगे, और फिर इस तरह लपेट देंगे जैसे जिससे इसको तहलीक किया था, वैसे ही इसको वापस इसकी हालत में ले आएंगे। अल्लाह अकबर। ठीक है, तो ये फिर आज से ये चीज जो है ये हमें बताई है अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले। तो जो ईमान वाला बंदा है, उसके लिए यही समझने को काफी है। इसको अगर एक आयत पे इसकी तफसीर वो पढ़ ले और देख ले और सुन ले, तो उसके लिए यही काफी है कि अल्लाह, ये किसने बता दिया, कौन है ऐसा कि ये जो सारी चीजों को पहले ही बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर हमने जो गैब का ईमान है, इस पे आप लोग शुक्र किया करें कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है। और ईमान असल में होता ही गैब का ईमान है। ठीक है, जब आपके सामने हर चीज खुली की खुली पड़ी रहे, ठीक है, आपको हर चीज का पता है, आप मतलब आपने सारी तहकीकात करनी है, उसके बाद आप ईमान लाए, वो भी ईमान ठीक है। लेकिन जो गैब का ईमान है कि आपको कुछ पता नहीं था, आपने अंधाधुंध बस अल्लाह पे ईमान ले आए। ठीक है, कुछ आपको तहकीकात नहीं आपने की, लेकिन आपको अपने रब पे ईमान है। असल ईमान गैब का ईमान है। इसलिए अल्लाह ताला ने दुआ कलाम में कहा है कि वो मोमिन जो गैब पे ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं। है ना आयत, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, स्टार्ट पे, लास्ट पे इमाम जाफिर, जो इतनी मुझे मजे की सच में ये बात लगी ना, इमाम जाफिर सादिक के कौल का ये मफहूम है। इमाम जाफिर कहते हैं कि अल्लाह की बड़ाई इस कदर है, इस कदर अल्लाह की बड़ाई है कि तुम बयान नहीं कर सकते। ठीक है, इस कदर अल्लाह की बड़ाई है कि सच में वो कहते हैं तुम बयान कर ही नहीं सकते। तो ये किया करो, जब भी तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो, जितनी भी कर लो, जितनी भी कर लो, जितनी भी बयान कर लो, जिस हद तक भी तुम अल्लाह की बड़ाई बयान कर लो, तो बस एक आखिर में एक जुमला कह दिया करो। तो वो जुमला ये है कि मैंने जो कुछ भी अभी बयान किया है ना, जो कुछ भी अभी बयान किया है, अल्लाह इस सबसे बड़ा है। ठीक है, इतनी मुझे ये मजे की बात लगी सच में। ये कहते हैं जितनी मर्जी तुम बड़ाई बयान कर लो, जितनी मर्जी अल्लाह की तारीफ कर लो, जितनी मर्जी उसकी हमद कर लो, लास्ट पे बस ये कह दिया करो कि जितना मैंने कह दिया है, अल्लाह इस सब से भी बड़ा है। अल्लाह अकबर। ठीक है, तो ये बहुत मजे की चीज थी, मुझे बहुत मजे की लगी थी, मेरे दिल पे लगी थी, सो मैंने फील किया कि आप लोगों को भी बता दी जाए, और इंशाल्लाह मुझे लगता है इससे आपका ईमान भी बहुत ताजा हुआ होगा।
اور آپ لوگوں کو بھی اس کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. سو آج آپ لوگوں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اس کو آپ نے آگے پہنچانے کی کوشش کرنی ہے.